हम पढ़ेंगे जरमिया 11 चैप्टर 12 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। जरमिया चैप्टर 11 फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। जरमिया proclaims God's covenant. He rebukes the disobedient Jews. He prophesies evils to come upon them, etc. The word that came to Jeremiah from the Lord, saying, Hear ye the words of this covenant, and speak unto the men of Judah, and to the inhabitants of Jerusalem, and say thou unto them, Thus saith the Lord God of Israel, Cursed be the man that obeyeth not the words of this covenant, which I commanded your fathers in the day that I brought them forth out of the land of Egypt from the iron furnace, saying, Obey my voice and do them, according to all which I command you. So shall ye be my people, and I will be your God, that I may perform the oath which I have sworn unto your flowing with milk and honey, as it is this day. Then answered I and said, So be it, O Lord. Then the Lord said unto me, Proclaim all these words in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem, saying, Hear ye the words of this covenant, and do them. For I earnestly protested unto your fathers in the day that I brought them up out of the land of Egypt, even unto this day, rising early and protesting, saying, Obey my voice. Yet they obeyed not, nor inclined their ear, but walked every one in the imagination of their evil heart. Therefore I will bring upon them all the words of this covenant which I commanded them to do, but they did them not. And the Lord said unto me, A conspiracy is found among the men of Judah. पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा कि आपकी उपस्थिति हम में हो और ये वचन की गहरे भेद हम जान सके, ताकि हम परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन में बढ़ते जाए और परमेश्वर चाहता है उस रचना में हम ढलते जाए। हमारी मदद करो परमेश्वर के आत्मा। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, हमारी समझ को खोलो, बुद्धि को खोलो और हमें समझने दीजिए, इन वचनों को हमारे अंदर आने दीजिए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। And the Lord said unto me, A conspiracy was found among the men of Judah and among the inhabitants of Jerusalem. They are turned back to the iniquities of their forefathers, which refused to hear my words, and they went after other gods to serve them. The house of Israel and the house of Judah have broken my covenant which I made with their fathers. Therefore thus saith the Lord, Behold, I will bring evil upon them, which they shall not be able to escape, and though they shall cry unto me, I will not hearken unto them. Then shall the cities of Judah and the inhabitants of Jerusalem go and cry unto the gods unto whom they offer incense, but they shall not save them at all in the time of their trouble. For according to the number of thy cities were thy gods, O Judah, and according to the number of the streets of Jerusalem have ye set up altars to that shameful thing, even altars to burn incense unto Baal. Therefore pray not thou for this people, neither lift up a cry or prayer for them, for I will not hear them in the time that they cry unto me for their trouble. What hath my beloved to do in mine house? Seeing she hath roughed lewdness with many, and the holy flesh is passed from thee.
When thou doest evil, then thou rejoicest. The Lord called thy name a green olive tree, fair and of goodly fruit. With the noise of a great tumult, he hath kindled fire upon it, and the branches of it are broken. For the Lord of hosts that planted thee hath pronounced evil against thee. For the evil of the house of Israel and of the house of Judah, which they have done against themselves to provoke me to anger in offering incense unto Baal. And the Lord hath given me knowledge of it, and I know it. Then thou showest me their doings. But I was like a lamb or an ox that is brought to the slaughter, and I knew not that they had devised devices against me, saying, Let us destroy the tree with the fruit thereof, and let us cut him off from the land of the living, that his name may be no more remembered. But, O Lord of hosts, that judgest righteously, that triest the reins and the heart, let me see thy vengeance on them. For unto thee have I revealed my cause. Therefore thus saith the Lord of the men of Anathoth, that seek thy life, saying, Prophesy not in the name of the Lord, that thou die not by our hand. Therefore thus saith the Lord of hosts, Behold, I will punish them. The young men shall die by the sword, their sons and their daughters shall die by famine, and there shall be no remnant of them. For I will bring evil upon the men of Anathoth, even the year of their visitation. Chapter 12. Introduction. Jeremiah complains of the wicked's prosperity. God laments the desolation of his heritage, etc. First verse. Righteous art thou, O Lord, when I plead with thee. Yet let me talk with thee of thy judgments. Wherefore doeth the way of the wicked prosper? Wherefore are all they happy that deal very treacherously? Thou hast planted them, yea, they have taken root, they grow, yea, they bring forth fruit. Thou art near in their mouth and far from their reins. But thou, O Lord, knowest me, thou hast seen me, and tried me, mine heart toward thee. Pull them out like sheep for the slaughter, and prepare them for the day of slaughter. How long shall the land mourn, and the herbs of every field wither for the wickedness of them that dwell therein? The beasts are consumed, and the birds, because they said, He shall not see our last end. If thou hast run with the footmen, and they have wearied thee, then how canst thou contend with horses? And if in the land of peace, wherein thou trustest, they wearied thee, then how wilt thou do in the swelling of Jordan? For even thy brethren and the house of thy father, even they have dealt treacherously with thee, yea, they have called a multitude after thee. Believe them not, though they speak fair words unto thee. I have forsaken mine house, I have left mine heritage, I have given the dearly beloved of my soul into the hand of her enemies. Mine heritage is unto me as a lion in the forest, it crieth out against me, therefore have I hated it. Mine heritage is unto me as a speckled bird, the birds round about are against her. Come ye, assemble all the beasts of the field, come to devour. Many pastors have destroyed my vineyard, they have trodden my portion under foot, they have made my pleasant
portion a desolate wilderness. They have made it desolate, and being desolate, it mourneth unto me. The whole land is made desolate, because no man layeth it to heart. देखिए, मैं यहाँ पे आपको हिंदी में कुछ बताऊंगी। 11 वर्स मैंने क्या बताया आपको? हमारे अंदर हमारा शरीर अब परमेश्वर का हो चुका है। आमीन। और परमेश्वर का शुद्ध करने का रास्ता आपको पता चल गया। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, परमेश्वर के भक्ति का जीवन जीना, ये हमको शुद्ध रखता है। ठीक है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट की शिक्षाओं के ऊपर हमारा मन लगा हुआ, ये दोनों चीज़ें हमें विश्वास के आत्मा का सुनने नहीं देंगे और विश्वास के ऊपर से हमारा मन निकाल लेंगे। ठीक है। तो अगर हमने ये देखभाल नहीं किया विश्वास के आत्मा का, जो परमेश्वर का धन हमको हमारे अंदर रहने के लिए दिया गया है, हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये 10 और 11 वचन का नतीजा हो जाएगा। ध्यान रखना, ये हम हिंदी में पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। The spoilers are come upon high places through the wilderness, for the sword of the Lord shall devour from the one end of the land even to the other end of the land. No flesh have peace. They have sown wheat, but shall reap thorns. They have put themselves to pain, but shall not profit. And they shall be ashamed of your revenues because of the fierce anger of the Lord. Thus saith the Lord against all mine evil neighbors that touch the inheritance which I have caused my people Israel to inherit. देखिए, ये विरासत के अंदर से हमको मिलता है विश्वास का आत्मा। हाँ, ये परमेश्वर हमको मसीह के अंदर, मसीह की जो विरासत है, मसीह को जो दिया गया है, उसके साथ हमको संगी वारिस बनाता है वो। ओके, वो हमको उसके साथ संगी वारिस बनाता है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो यीशु मसीह के सिर्फ केवल वो प्रॉपर्टी में परमेश्वर हमको उस विरासत में सहभागी कर देता है, भागीदार बना देता है। भागीदार नहीं, भागी बना देता है, सहभागी बना देता है। ओके, तो इस प्रकार से हम उसकी अगर परवाह नहीं रखेंगे, उसकी अगर हम चिंता नहीं करेंगे, तो उसके कारण फिर परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है। ओके, वो अपनी उस प्रॉपर्टी को जो उड़ाऊ पुत्र था, उस तरह से वो उसके दिए हुए चीज़ों को उड़ाने नहीं देता है वो। ओके, उसकी रखवाली करता है वो। ठीक है। और देखिए क्या लिखा है वहाँ पर, जो भी परमेश्वर का जन जो है, जो ऐसी विरासत को अपने अंदर लिए हुए है, और फिर भी अगर कोई बुराई से, दुष्टाई से मसीही लोगों को छल करने के लिए तुला हो, तो फिर परमेश्वर उसके विरोध में भी अपना हाथ उठाता है। ओके, अगर हम मसीह होते हुए भी परमेश्वर के विश्वास के धन का परवाह नहीं करेंगे, विश्वास के धन एक, विश्वास का आत्मा एक धन है परमेश्वर का जो हमारे अंदर रखा है, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे और हम लापरवाही से कैसे भी जीवन जिएंगे, भ्रम में डालने वाले आत्माओं के पीछे चले जाएंगे, हमारे मनों को हम झूठ की बातों पर लगा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा परमेश्वर का विरोध बढ़ जाएगा। ठीक है। तो परमेश्वर उसमें भी हमको फिर कुछ प्रॉफिट होने नहीं देगा हमारे शरीर से। हमारा शरीर व्याकुल होकर अशांत रहेगा, हमारे शरीर में शांति नहीं रहेगी, हमारा शरीर हाय हाय तौबा तौबा करता हुआ रहेगा। मसीह है फिर भी। देखिए, मसीह लोग बीमार नहीं रह सकते ऐसा नहीं है, मसीह लोग गरीब नहीं हो सकते ऐसे नहीं है, मसीह लोग बिना परेशानी के नहीं रह सकते ऐसे नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसके मध्य में शांति को उनके अंदर रखा हुआ रहता है। ये ट्रेजर है परमेश्वर का। तो अगर हम मसीह है और हमारे साथ अगर इस प्रकार से हमने दुष्ट की शिक्षाओं पर मन लगा लिया या हमने भ्रम करने वाले आत्माओं के पीछे चले गए, तो फिर हम क्या हो जाएंगे? हम विश्वास का नहीं सुन पाएंगे। जो परमेश्वर का आत्मा ट्रेजर धन है हमारे अंदर, हम उसके बेनिफिट के काम नहीं करेंगे, उसको प्रॉफिटेबल जीवन नहीं जिएंगे, उसको जो माहौल चाहिए भक्तिपूर्ण माहौल वो हम नहीं दे पाएंगे, हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप की सुरक्षा कवच
प्रार्थना के द्वारा बना नहीं पाएंगे। तो ये सब कुछ हमारा ढीला पड़ा हुआ शहरपना हो जाता है। वहाँ से फिर शैतान के अटैक्स बढ़ जाते और हमारे शरीर की शांति को वो कुचलते जाते हैं। ठीक है, अब शरीर की शांति कुचलने का तो वैसे भी शैतान का प्रबंध है, वैसे भी उसकी योजनाएं हैं, अरेंजमेंट्स है। आप चाहे आप प्रार्थना करने वाले और विश्वास को संभालने वाले हो या ना हो, फिर भी उसकी तो है ही है लड़ाई की, वो चोरी नाश घात करने की पीछे पड़ा रहता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के भक्तिपूर्ण जीवन को तुच्छ जानकर आप विश्वास से भटका देने वाले, भरमाने वाली आत्माओं के पीछे जाए, दुष्ट आत्माओं के शक्तियों के पीछे जाए और आप उनके शिक्षाओं को ले, अगर आप ऐसा करेंगे तो विश्वास की आप सुन नहीं पाएंगे। ऐसे समय में जब आपके ऊपर आक्रमण छोड़ता है शैतान का आत्मा, जब आपके शरीर पीड़ित हो जाते हैं, आपका शांति टूट जाता है। ओके, निराशा के शब्द आपके अंदर से निकलने लगते हैं। ओके, आपकी हियाव टूटने लगता है, आपका धीरज टूटने लगता है, असफलता का डर आपके अंदर उठने लगता है। क्या परमेश्वर मेरी सुनेगा भी या नहीं? तो ये सब कहाँ शुरू हो गया? आपका ये डायलॉग्स आना, रोना और आपने हताशा फील करना, ये सब आपका किस एरिया ऑफ लाइफ का नज़ारा दिखाता है? जहाँ पे आपने दुष्ट शक्तियों का शिक्षा के ऊपर मन लगाया और भरमाने वाले आत्माओं का सुन लिया। ये आपके नतीजा उस नज़ारा का दिखाई देता है। ठीक है, तो आप समझ जाइए, जब आप पीड़ित हैं और फिर भी आप तसल्ली में जी रहे परमेश्वर के अंदर, तसल्ली के साथ आप भक्तिपूर्ण जीवन को छोड़ नहीं रहे, आप तसल्ली के साथ उसके मध्य में, सारे परेशान अवस्थाओं के मध्य में आप परमेश्वर की वाहवाही करते हुए चल रहे हैं, तो साबित हो जाता है ओके कि ये जो आपके ऊपर आक्रमण है ये सिर्फ चोरी नाश घात करने के लिए है, और आप मसीह की विरासत जो शांति से परिपूर्ण है उसमें आप ठहरे हुए हैं, आप विश्वास के आत्मा में चल रहे हैं, ये उसका प्रमाण हो जाता है। तो परमेश्वर आपके साइड से है, आपकी ओर से है, और फिर जाके वो देखिए क्या करने वाला है। जब ऐसे समय में आपका चोरी नाश करने के लिए शैतान आड़े आ जाता है, तब देखो क्या लिखा है 14th वर्ष से आगे, Behold, I will pluck them out of their land and pluck out the house of Judah from among them. And it shall come to pass after that I have plucked them out, I will return and have compassion on them and will bring them again, every man to his heritage and every man to his land. उस शैतानी जगत के इंसान को जो बुराइयों में फंसा हुआ है, धंसा हुआ है, पहले तो फाइट करेगा मेरा परमेश्वर उनके साथ, और जब उनके सारी शक्तियाँ फिरौन की तरह खत्म हो जाएगी, तब मेरा परमेश्वर उनको उखाड़ लेगा उस जमीन से, और किस जमीन में लगाएगा? जिसके अंदर परमेश्वर अब उनके ऊपर दया करने के लिए रास्ता रखेगा, माफ करने का रास्ता रखेगा। Amen. Or every man to his heritage and every man to his land. And it shall come to pass if they will diligently. अब इसके बाद फिर दोबारा उनके ऊपर परमेश्वर निगरानी रखने वाला है। वो क्या कह रहा है कि ठीक है, मैं तो उनको उस समय दुष्टता कर रहे थे, मेरे लोगों को सता रहे थे, तब तो मैंने उनको अच्छे से झाड़ तो दिया है अच्छे से, लेकिन अब मैं उनके ऊपर दया करने का फिर एक समय रख चुका हूँ। अब क्या करना है? दया के अंदर आ गए, उद्धार के दर्शन को पाने लगे, अब समझने लगे यीशु मसीह कौन है, अब विश्वास के रास्ते उनको पसंद आने लगे। अब की बात तो ठीक है, आगे और भी कुछ है। अब क्या करना है? वो दुष्ट आत्माएं दोबारा लौट कर आएगी उनका इस्तेमाल करने के लिए, दोबारा आएगी छल कपट करते बैठने के लिए, उनको उकसाने के लिए, ओके, उनको निराशा करने के लिए, उनको लोगों को सताने के लिए, जो भी वो चाहेगी उनसे करवाने के लिए, वो ट्रिक जो पहले किया करते थे दोबारा आएगी उनको बताने के लिए, चलो फिर से करते हैं, चलो फिर से सताएंगे, चलो फिर से एक मन हो जाएंगे, चलो मिल बांट के हम सताएंगे, मिल बांट के इसका बेनिफिट पाएंगे। ये सब फिर दोबारा आएगी। अब क्या हो जाता है? अब इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है ये कि हमने ध्यान पूर्वक
जो परमेश्वर हमको सिखाता है उसी रास्ते पर बने रहना है और दुष्टता के जगत में फिर लौट के नहीं जाना है। ये हो गई हमारी बुद्धिमानी की बातें जो 5 कुंवारियों ने पूरी करी, और वो दूल्हा आया और दरवाज़ा खुला और वो दूल्हे के साथ अंदर लिए गए। हालेलुया। लेकिन अगर हम बुद्धिमानी नहीं, निर्बुद्धिपन कर रहे, मूर्खता की रास्ते चल रहे, तो हम थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा शुद्धता, थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा अधर्म, थोड़ा सा दुष्टता, फिर थोड़ी सी शुद्धता, फिर थोड़ी से यहाँ वहाँ घूम फिराना, फिर थोड़ा सा प्रभु, फिर भक्तिहीन जीवन, फिर भक्तिमय जीवन, फिर भक्तिहीन जीवन। ये अगर हम करते रहेंगे तो हम निर्बुद्धि ठहरेंगे, मूर्ख कुंवारियाँ ठहरेंगे और प्रभु यीशु हमें थूक देगा, उसके मुंह से वो उगल देगा हमको। ठीक है, वो हमारी जगह नहीं रखेगा अपने अंदर। ओके, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, diligently learn the ways of my people, देखो, and it shall come to pass if, अगर हम मसीह लोग भी जानते हुए समझते हुए परमेश्वर ने सिखाई बातों के ऊपर ही चलते रहेंगे, हाँ, to swear by my name, the Lord liveth, as they taught my people to swear by Baal, then shall they be built in the midst of my people. But if they will not obey, I will utterly pluck up and destroy that nation. Hallelujah, said the Lord. अब इसके बाद का जब क्रोध उठेगा परमेश्वर का, माफ़ी एक बार ही है सिर्फ। ओके, एक बार ही मन परिवर्तित होना है, एक बार ही परमेश्वर के साथ मेल कर लेना है। इसके बाद बारंबार आपका ऐसा नहीं रहेगा। इसके बाद अगर आप फिर वो दुष्ट शक्तियों के पीछे चले जाएंगे, फिर वो दुष्ट सिखाई हुई बातों के पीछे चले जाएंगे, फिर पीढ़ी परंपराओं के साथ आई हुई बातों को मानने, तौलने, नापने लगोगे, तो परमेश्वर कहता है अब की बार, हाँ, मैं ऐसा उखाड़ूंगा, सत्यानाश कर दूंगा। हालेलुया, हमेशा के लिए। ठीक है, तो परमेश्वर इस पृथ्वी के जीवन में जितनी हमको जिम्मेदारी दिया है, भले विश्वास योग्यता से हमने उसे पूरी तरह से निभाना है। नहीं निभाएंगे हम यहाँ वहाँ भटकते हुए जीवन जीते रहेंगे और फिर मसीह कहलाएंगे अपने आप को। पृथ्वी के ऊपर तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मरने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। पौलुस खुद कहता है इस बात को, ये मत समझो कि तुम मसीह हो और फिर ऐसे काम करोगे और फिर सोचोगे कि फिर भी तुम मसीह के विरासत में रहोगे। माय डियर फ्रेंड्स, भूल जाइए। ओके, और यही बात प्रकाशित वाक्य में भी लिखी है। ओके, ऐसे काम करने वालों के लिए परमेश्वर ने आग रखी है, उस झील में डाला जाएगा उनको। हालेलुया। तो आप मसीह है, पाप की माफ़ी हो चुकी है, और फिर भी आप ऐसे काम करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए, तो पृथ्वी के ऊपर तो आग की झील आपको नहीं मालूम पड़ेगी। मरने के बाद तो निश्चित हो जाएगा वो, क्योंकि दोबारा पापों की माफ़ी नहीं है। हम क्या बोएंगे हम काटेंगे वही। ओके, हम पृथ्वी के ऊपर डिलीजेंटली, ध्यान से, बड़े महत्व देते हुए, बड़ा महत्वपूर्ण जीवन मानते हुए हमने परमेश्वर ने सिखाई हुई बातों के ऊपर अड़े के खड़े रहना है। हालेलुया। हाँ, तो इसके अलावा हमें टलना नहीं है। अगर हम ऐसे जिद्द होकर खड़े रहेंगे तो मसीह के आशा जो हमारे लिए है, हमने रखी है, हम उसके अंदर ही दिखाई देंगे। अगर उसको छोड़ देंगे, हम डावाडोल होते रहेंगे, यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे और फिर मसीह कहलाएंगे। आपको पृथ्वी के ऊपर कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हो जाएगा समय चुनाव करने का कि कौन भेड़ है और कौन बकरी है ओके, तब के लिए आप थोड़ी तैयारी रखो। ओके, और ऐसा भी समय रहने वाला है कि परमेश्वर प्रभु यीशु कहेगा, मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कौन हो? और हम लोग बोलेंगे कि अरे मैंने तो ये किया, मैंने वो किया तेरे नाम से, ये किया मैंने तेरे नाम से। वो बोलता मैं नहीं जानता हूँ तुमको फिर भी। ओके, लेकिन जो भेड़ है वो अलग रहेंगे और जो बकरियाँ है वो
अलग कर दिए जाएंगे। ओके, तो मसीही जीवन में भेड़ और बकरियों के मेल मिलाप में चल रहे तो है हम, लेकिन कौन भेड़ और कौन बकरी है उस समय न्याय के समय पता चल जाएगा हमको। ठीक है, इसके लिए अपनी चौकसी करो और ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को बिना छोड़े बिना त्यागे सिर्फ वचन ही का पूरा ध्यान रखते हुए आगे जीवन बिताते रहो आखिरी सांस तक। आमीन। हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल से अभी। यिर्मयाह और वाचा 11 अध्याय पहले वचन से। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा, और देखो वह पूरी हुई है। यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा, ऐसा ही हो। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कहे, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूँ, मेरी बात सुनो। परंतु उन्होंने न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे। हालेलुया। देखो, परमेश्वर उद्धार में लाने का काम करेगा, हम प्रार्थना करेंगे तो ठीक है, लेकिन उसके बाद का उनका प्रभु की आज्ञा पालन में बने रहने की प्रार्थना को भी हमने जिद लगाकर करना है परमेश्वर से। ओके, ताकि उनका हठीला मन दोबारा जीवित ना हो जाए। ओके, बुरा मन, उनका हट पे चलने वाला मन दोबारा जड़ ना पकड़ ले। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है, हठ मन, बुरा मन दोबारा जड़ पकड़ लेता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के सम्मुख हमारे लिए कोई प्रार्थना करता रहेगा तो हम वो नहीं होंगे, जो बुरा मन, हठीला मन होता है वैसा हम नहीं होंगे। ओके, तो हम उद्धार में लाने का काम तो करेंगे, लेकिन उसके बाद उनको उद्धार में बने रहने का भी काम हमने करना है। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा को सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने न मानी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है, जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इस्राएल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यूँ कहता है, देख, मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे ये बच न सकेंगे, और चाहे ये मेरी दोहाई दे तो भी मैं इनकी न सुनूंगा। इस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दोहाई देंगे जिनके लिए वे धूप जलाते हैं, परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी न बचा सकेंगे। हालेलुया। देखा, अब इस्राएल परमेश्वर के बुलाई हुई चुनी हुई प्रजा है, फिर भी परमेश्वर उनको रोकता नहीं है। उनके ढीठ हठीले मन की बुराई के पीछे जाने से परमेश्वर उनको रोकता नहीं, लेकिन पनिशमेंट करता है। हाँ, पनिशमेंट करता है वो। देखिए ना यहाँ पर, और सेम हमारे बारे में क्यों नहीं होगा परमेश्वर से।
है ना। तो हम कैसे लापरवाही से जीवन जी सकेंगे? मसीह है और फिर हम कुछ और भक्ति के पीछे भी जाएं तो आप सोचिए कैसे परमेश्वर हमको त्याग देगा, कैसे परमेश्वर हमको ताड़ना देगा, कैसे हमारी हालत करके रखेगा वो। अगर इस्राएल को नहीं छोड़ता है वो हमको क्या छोड़ेगा? समझ में लीजिए इस बात को, ठीक है। हे यहूदा, जितने तेरे नगर है उतने ही तेरे देवता भी है, और यरूशलेम के निवासियों ने हर एक सड़क में उस लज्जापूर्ण बाल की वेदियां बना बना कर उसके लिए धूप जलाया है। इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना। यही कारण है फिर हम कुछ ऐसे समय हो जाता है कि हमको प्रार्थना करने का मन नहीं होता है उनके लिए, है ना। लेकिन हम फिर भी अब्राहम की तरह हो जाते हैं। परमेश्वर तो नहीं चाहता है प्रार्थना करो उनके लिए, लेकिन फिर भी हम अब्राहम और मूसा की तरह मध्यस्थी में खड़े हो जाते हैं और हम विनती करते हैं कि नहीं लॉर्ड, आप कुछ कीजिए, रास्ता बंद मत कीजिए, आप आने दीजिए उनको प्रभु के राज्य में। ओके, तो इस प्रकार से हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना उनका रास्ता खोल खोल कर उनको और चांस देती है, और चांस देती है। लेकिन फिर बाद में परमेश्वर नहीं सुनेगा हमारा। समझ में आया? परमेश्वर नाश कर देता है ऐसे लोगों का फिर, ठीक है। इसलिए तो मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, न कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दोहाई देंगे तब मैं उनकी न सुनूंगा। ध्यान रखिए इस बात को। ओके, आप जब प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हैं, हम प्रेयर तो कर देते हैं और आप भी प्रेयर को ले लेते हैं, आपकी उन्नति हो जाती है, हम भी उन्नति में रहते हैं, आप भी उन्नति में रहते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। लेकिन जब वो समय आता है जहाँ पर आप प्रभु को छोड़कर कुछ और जगहों में अपने मन को लगाने लगते हैं, तब याद रखिए बारंबार आपको हमारी प्रार्थना होती तो रहेगी, लेकिन फिर आप दूसरी ताड़ना पाएंगे, फिर आप दूसरे परीक्षा में हो जाएंगे, फिर आप दूसरे बुरे कामों के कारण कोई विपत्ति में चले जाएंगे। आपकी शहरपनाह कमज़ोर रहती है ऐसे समय में। ओके, और एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार आप बचा लिए जा रहे, लेकिन ऐसे बारंबार नहीं हो पाएगा। ओके, एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी नहीं सुनेगा, ठीक है। तो वो समय का इंतज़ार नहीं करना है, हमने अपने चाल को जल्दी से ध्यान लगा लेना है कि नो बाबा, वी कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग्स। हम ये सारी गंदी बातों की ओर मन नहीं लगा सकते हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा, हम परमेश्वर के आंखों से गिर जाएंगे, हम परमेश्वर के जो काम है उससे अलग किए जाए तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपके जीवन को सुरक्षित करना ज़रूरी है, ठीक है। हमने अपने जीवन को सुरक्षित करना ज़रूरी है। मौका बहुत आता है, अवसर बहुत आता है, मन को ललचाने वाले अवसर आ जाते हैं, मन को भाने वाले अवसर आ जाते हैं। बहुत समय ऐसा हो जाता है कि हम सब कुछ को छोड़कर सबसे पहला हमारा शरीर जिसमें आनंद होता है वही हम करें, यही भी हो जाता है। ओके, फिर भी हमको वहाँ पर भी ये ध्यान रखना पड़ता है, माय डियर फ्रेंड, ये हमारे लिए एक फंदा बन सकता है। ओके, हम परमेश्वर को छोड़कर और कहीं जा नहीं सकते, केवल परमेश्वर ही हमारा सब कुछ में सब कुछ है। इसके लिए उसी के अंदर हमको बने रहना है, चाहे पसंद आए नहीं आए, हमने वही रास्ते चलना है जो परमेश्वर हमको देता है। आमीन। आगे देखिए क्या है ये 15 वचन से आगे, मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या काम है? उसने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया और तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही है। जब तू बुराई करती है तब प्रसन्न होती है। यहोवा ने तुझको हरा, मनोहर, सुंदर फल वाला जैतून तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली। हालेलुया। देखिए, मैंने बोला ना आपको, हिंदी में मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। ये धन है विश्वास का आत्मा हमारे अंदर। अगर उसकी चौकसी नहीं करेंगे, चौकन्ने नहीं रहेंगे, उसको हम अपने अंदर सुरक्षित नहीं रखेंगे, अगर हम उसके बारे में लापरवाही रखेंगे, बेपरवाह रहेंगे, तो उसकी हानि हो जाएगी, उसकी हानि हो जाएगी। और अगर उस धन की हमने हानि होने दी तो परमेश्वर हमारी भी हानि होने देगा। ओके, यहाँ देखिए क्या लिखा है, सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है। इसका कारण इस्राएल और यहूदा के घरानों की यह बुराई है कि उन्होंने मुझे रिस दिलाने के लिए बाल के निमित्त धूप जलाया।
यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र। 18 वचन से आगे, यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। मैं तो वध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था, मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां यह कहकर करते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दें और जीवितों के बीच में से काट डालें, तब इसका नाम तक फिर स्मरण न रहे। परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतकरण की बातों के ज्ञाता, तो उनसे बदला ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। हालेलुया। देखिए, प्रभु में हम आए तो हमारे विरोध जो चोरी नाश घात करने का षड्यंत्र बनता है, वो तो अपने षड्यंत्र में होते ही रहेंगे, उसके लिए तो हम कुछ मना नहीं कर सकते हैं उनको, लेकिन फिर हम परमेश्वर की ओर अपने विपत्तियों को हाथ दे सकते हैं। हम परमेश्वर को दे सकते हैं सब कुछ, अपना सारा मसला परमेश्वर को दे सकते हैं और बोल सकते कि अब तू कुछ कर पिता, हम तो नहीं जा रहे तेरे विरोध में, लेकिन ये देख, ये सारी शक्तियाँ हमें सता रही है। आमीन। 21 वचन से आगे, इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी है और यह कहते हैं कि यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी न कर, नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा। ओके, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो प्रभु की बातें कर रहे हैं, हम प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन विरोधी तो आ ही रहे ना फिर भी, तो फिर अब क्या आ जाएगा हमारे लिए? परमेश्वर की ओर दोहाई देना। हालेलुया। हम परमेश्वर की ओर दोहाई देंगे तो अब लड़ेगा कौन? परमेश्वर अपनी युक्ति के साथ लड़ेगा। हालेलुया। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसान रास्ता है फिर हमारे लिए। हम शरीर के उपद्रव नहीं करना है, हम जस्ट परमेश्वर के सामने अपने मसलों को रखना है और मांगना है कि लॉर्ड कुछ कर, रास्ता निकाल इसमें से। हालेलुया। देखिए, फिर 22 वचन हमारी आशा पूरी होने का रास्ता दिखाता है। इसलिए सेनाओं का यहोवा उनके विषय यूं कहता है, मैं इनको दंड दूंगा, उनके जवान तलवार से मरे और उनके लड़के लड़कियों भूखों मरेंगे और उनमें से कोई भी न बचेगा। मैं अनातोत के लोगों पर यह विपत्ति डालूंगा, उनके दंड का दिन आने वाला है। हालेलुया। तो विपत्ति और दंड का दिन दोनों अलग अलग है। विपत्तियां इस पृथ्वी के ऊपर रहते समय है, दंड मरने के बाद है। ठीक है, तो वो दोनों जगह नहीं बचेंगे, ना ही यहाँ पर ना मरने के बाद। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमारे विरोधियों के साथ बदला लेता है। ठीक है, तो आप ये सोचते होंगे कि विरोधियों के लिए दया 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 मांगना है, आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आप बदला नहीं ले रहे, परमेश्वर के हाथों में बदला सौंप रहे हैं। तो परमेश्वर बदला लेना जानता है, वो देखता है हृदयों को, क्या ये अभी भी मेरी ओर तुच्छ ही नज़रों से देखते हैं, मेरे लोगों को अभी भी सताना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इनको सही ढंग से सबक सिखाई देना है अभी। ओके, उसके पास रास्ते हैं, उसके पास तरीके हैं, युक्तियां हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसके लिए वो वचन कहा गया है कि जब इकट्ठे उस दासों ने देखा कि इकट्ठे कड़वी बीज भी उपज कर आए हैं और जो अच्छा फसल है वो भी उपज के आया है, तो वो दास जाकर मालिक के से कहते हैं कि क्या है मालिक, तूने तो अच्छे बीज बोए थे, ये कड़वे बीज के कैसे आ गए पौधे? तो फिर मालिक बोलता है कि अब ये तो हो सकता है बैरी ने ही बोया है, रात के समय जब हम सो रहे थे तभी उसने बो दिया। तो फिर ठीक है, तो अब दास कहते हम जाए काट दे उनको। तो फिर वहाँ पे वो दास को बोलता है मालिक, नहीं नहीं अभी नहीं काटना, क्योंकि अब अगर तुम जाओगे तो अच्छी फसल को बुरी फसल समझते वो
अच्छी फसल को भी कटवा दोगे आप। ओके, तो कड़वे बीज के जो पौधे हैं सिर्फ वही नहीं है, वो थोड़ी समानता में दिखाई देते हैं। जो अच्छे पौधे हैं, अच्छे फसल है, उसके समानता में थोड़े से दिखाई देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कड़वे हैं या अच्छे हैं, तो तुम अच्छे को भी बुरे के साथ उखाड़ लोगे। तो ये काम तो स्वर्गदूत को करने दीजिए। हालेलुया। तो हर एक पाप करने वाला इंसान अच्छे और बुरे गुणों के साथ भरा हुआ रहता है। ओके, उसके पास परमेश्वर के कुछ अच्छा काम भी हो रहा होता है और बुरा गुण उसके अंदर से, कड़वे बीज उसके अंदर से पाप और अधर्म के काम भी कर रहे होते हैं। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम न्याय मत करो, तुम मेरे हाथ में दो, बदला लेना मेरे हाथ में दे दो, ताकि मैं क्या करूँगा, मैं जानता हूँ कड़वा का कड़वा कौन है और अच्छा का अच्छा कौन है। ठीक है, तो जो कड़वा है उसे मैं उखाड़ लूँगा। स्वर्गदूत आते हैं और फिर उन सारे कामों को पूरा करते हैं और यीशु मसीह में लोगों को लेकर आते हैं। आमीन। वो कोई भी रहे, फिर उनके अंदर के अच्छे बीज जो है, जो परमेश्वर का पसंदीदा एरिया ऑफ लाइफ है उनके लाइफ का, तो वो भी हम नहीं समझेंगे और हम उसको भी बुरा ही सोचेंगे और उसको भी उखाड़ देंगे। इसके लिए हम न्याय मतलब बदला लेने का, न्याय का नहीं, बदला लेने का काम हमने हमेशा परमेश्वर के हाथों में दे देना है। हालेलुया। और हमने अपने अंदर से उस इंसान को माफ़ी दे देना है और रास्ता छोड़ देना है, वो निकल जाए आगे। ओके, आशीष देके उसको छोड़ देना है, लेकिन उसके अंदर से जो काम कर रहा है उस दुष्ट आत्मा को हमेशा आप अपने प्रार्थना से लताड़ते रहना है, कुचलते रहना है। तो नाग और सिंह को कुचलेगा तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम जो भी, देखो आप सोचते होंगे कि दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ इंसान है, इंसान से नफरत करे या दुष्ट आत्मा से, इंसान से नहीं, लेकिन आपको दुष्ट आत्मा से नफरत करना है, नफरत करना है, नफरत, कंप्लीट नफरत, क्योंकि वो आपका मन खींच लेता है। ओके, वो आपके मन में ऐसा मीठापन लाएगा कि आप उस इंसान को भी सुरक्षित रखेंगे और उसके अंदर बैठा हुआ दुष्ट आत्मा को भी अच्छे से सुरक्षित रखेंगे। ओके, नहीं, हमको इंसान से कोई मतलब नहीं है, वो बाजू में कर देना है, दिमाग में से हटा देना है उसको अपने दिमाग से, लेकिन दुष्ट आत्मा को ऐसे लताड़ना बोला है। लताड़ना ये शब्द विचित्र शब्द है, ये सभ्यता का शब्द नहीं है। परमेश्वर का वचन हमको बोलता है लताड़ो उसको, किक आउट करो उसको। हालेलुया। उसको मानो मत आप। तो लोगों के अंदर जब दुष्ट आत्मा होता है और वो आपको सता रहा है तो आप लताड़ना है, लताड़ना है, लताड़ना है। ओके, उसको आप गले लगा कर नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते ओह ये तो इंसान है, रहने दीजिए। तो आप इंसान को भी संभाल रहे हैं और उसके अंदर के दुष्ट आत्मा को भी संभाल रहे। ओके, नहीं, आपको दुष्ट आत्मा जो काम करता है उसको लताड़ना है, उसको डांटना है, फटकारना है और उसको निकल जाने की आज्ञा करना है। बस फिर वो इंसान के अंदर से वो डर पैदा होता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है उसके अंदर कि वो दोबारा आपका पीछा करना छोड़ देता है। ओके, ये समय लाता है परमेश्वर और दुष्ट आत्माएं जानती है कि इसने मुझे लताड़ दिया है, अब अगर मैं फिर भी इसके पीछे जाऊं तो इसके स्वर्गदूत निकलेंगे और मेरी हालत खराब कर देंगे। ओके, इसके लिए वो नहीं आना चाहते आगे, लेकिन मनुष्य मूर्ख रहता है, वो उनको पकड़ पकड़ के लाता है। ओके, अगर पहले वाला नहीं काम करना चाहता है फिर दूसरे को लेकर आते हैं, दूसरा फिर डरने लगता है फिर तीसरे को लेकर आते हैं। ठीक है, तो वो मनुष्य की निर्बुद्धिपन रहता है, लेकिन दुष्ट आत्माएं को आप जब फटकार देते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसके आगे अब नहीं जाना है। ओके, तो आप निश्चिंत रहना है। आप जितना समय आप देखेंगे दुष्ट आत्माएं आपको सता रही है, आप समझ जाना ये इंसान नया दुष्ट आत्माओं को लेकर आ रहा है। ओके, उसके पास पुराना वाला नहीं रहेगा, क्योंकि पुराना वाला आपके झिड़क से डर जाता है और निकल जाता है वो। ठीक है, आपकी झिड़क कौन सी? यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, तो अपने आप का भी आप चौकसी रखिए, चौकन्ने रहिए। आपके अंदर का विश्वास का धन, परमेश्वर बहुत बड़ी संपत्ति है उसके राज्य की, वो आपको दिया है, तो आपने उसका पालन पोषण
बहुत बढ़िया तरह से करना है। जैसा एक करोड़ों का खजाना अगर आपके पास किसी ने चुपचाप लाके दे दिया, इवन एक छोटा सा डायमंड भी आपको लाके दिया किसी ने, तो भी आप बहुत भारी उसके बारे में चौकसी रखते। वो डायमंड यहाँ नहीं रखना है, वो डायमंड उधर नहीं रखना है, वो डायमंड किसी को पता नहीं लगना है। अगर पहनेंगे तो लाख कोशिशें करेंगे कि वो नकली डायमंड है ऐसे दिखाई दे, है ना। तो इतना आप ध्यान रखते हैं आपके प्रेशियसनेस का, जो आप बहुमूल्य मानते हैं उन बातों का। तो समझिए आप उसके बारे में, जो इसने सृष्टि को निर्माण किया है, उसकी खुद के जिगर का टुकड़ा जो कहा जाए तो कहे तो ओके, वैसा विश्वास का आत्मा उसने आपके अंदर दिया है। तो आपने कितना उसका बहुमूल्यता समझकर उसको भली भांति भक्ति में जीवन के अंदर उसको संभाल के रखना है। हालेलुया। और ऐसो ही को परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, ऐसो ही का परमेश्वर चाहत रखता है, वो ऐसे ही को परमेश्वर ऊंचा उन्नति का रास्ता और बढ़ा के देता है। क्योंकि अब्राहम को क्यों लिया परमेश्वर ने अपने पास? क्योंकि उसने एक खास सेंटेंस लिखा है, वचन लिखा है ऐसा कि परमेश्वर जानता था कि ये अपने आने वाले पीढ़ियों को मेरे रास्ते सिखाएगा। हालेलुया। ये खासियत परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में चुनाव करते समय लिखा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा है पवित्र वचन। तो उस आत्मा ने उस बात को खास करके लिख के बताया, क्या? अब्राहम आने वाले पीढ़ियों को मेरी बातें सिखाएगा। इसके लिए मैं इसके ऊपर ये एक बहुत ज़बरदस्त योजना रख रहा हूँ। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए आपके अंदर परमेश्वर ने विश्वास का आत्मा क्यों दिया है। क्योंकि आप लोगों को सिखाएंगे परमेश्वर के रास्ते पकड़ना। हालेलुया। आप लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर आएंगे। यही तो वजह है कि आपको परमेश्वर ने उसका जिगर का टुकड़ा जो कह सकते हैं, ऐसा बहुमूल्य उसका प्रेशियस विरासत में शामिल कर लिया और आपके अंदर विश्वास के आत्मा को रख दिया। हालेलुया। तो इतना महान परमेश्वर है हमारा कि उसका इकलौता प्रिय बेटा यीशु मसीह हमको दे दिया उसने। उसकी बहुमूल्यता हम नहीं समझेंगे और फिर भी हम आड़े टेढ़े जीवन जिएंगे, लापरवाही का जीवन जिएंगे, तो हम जैसा निर्बुद्धि इंसान और दुनिया में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद को देख के समझ सकेंगे। समझ में आया? निर्बुद्धि मत बनिए माय डियर फ्रेंड्स। ओके, मूर्ख मत बनिए। इस जगत का निर्माण करता, इस सृष्टि का निर्माण करता अपनी विरासत में हमको शामिल कर रहा है। उससे बढ़कर कौन सी विरासत इस दुनिया के अंदर है? हालेलुया। इससे बढ़कर शरीर में और क्या प्रेम को आप बनाए रखेंगे? हालेलुया। इस शरीर की कौन सी अभिलाषा, कौन सी लालसा है ऐसी जो परमेश्वर के विरासत को तुच्छ जानकर शरीर के बातों में पड़ी रहे? ऐसा क्या है शरीर में? सिर्फ एक कुछ भी ऐसा कुछ हो जाए शरीर को, देखिए शरीर कैसे तड़पता है, वो अपने आप को बचा नहीं सकता है। इस शरीर को आप सोच रहे हैं ना कि मैं इसको अच्छा खाना खिलाऊंगी, अच्छा पीना दूंगी, अच्छा रखूंगी, अच्छा चलाऊंगी, अच्छा दिखूंगी, अच्छा करूंगी, अच्छा रहूंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, अच्छे जीवन जीऊंगी, अच्छे तरह से। शरीर के पीछे क्यों आप इतना मन लगा रहे हैं? ओके, शरीर आपको कुछ नहीं देगा, वो सीधा मिट्टी में लेकर जाएगा आपको। ठीक है, आपका प्राण शरीर की देखभाल में सिर्फ वहां तक रहना है कि वो परमेश्वर का मंदिर है। ठीक है, और शरीर से आपका प्राण वही काम पूरी करते जाना है जो परमेश्वर के विश्वास के आत्मा को बेनिफिट करे, फायदेमंद रखे, ओके, प्रॉफिटेबल रखे। आमेन। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बना रहे, हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, आपने इन वचनों की इतनी गहरी बात हमारे जीवन में पहुंचाई। पवित्र आत्मा, आपको हम धन्यवाद करते हैं नासरी यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम पढ़ेंगे। मतलब उसके अंदर जो वचन दिए हैं हम देखेंगे 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में।
John 7 chapter 1 verse से 10 verse, 2 Kings 9 chapter। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 वचन से 10 वचन तक और दूसरे राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय। हम जब इन वचनों को पढ़ रहे होते हैं, जब इन वचनों के अधीन जाते हैं, जब ऐसे अकेले में बैठकर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तब ये वचन इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर काम करेंगे कि विश्वास के आत्मा का काम होगा। ओके, विश्वास के आत्मा को भक्ति भरा हुआ समय मिलेगा। ओके, और उसके अंदर से विश्वास पनपने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बहुत अच्छा फलता जाएगा, फैलता जाएगा, फूलता जाएगा और हमारा उन्नति प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। हम खुद भी उन्नति में दिखेंगे और हमारे संगति में चलने वाले भी उन्नति में रहेंगे। हालेलुया। ये होने के लिए ही परमेश्वर ने उसका आत्मा हमें दिया है। आमीन। उसके आत्मा में हम सुरक्षित रीति से एकांत में बैठकर बाइबल रीडिंग करना है। मैंने आपको बताया 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 7 चैप्टर 1 वर्स से 10 वर्स, 2 किंग्स 9 चैप्टर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 वचन से 10 वचन, दूसरे राजाओं की पुस्तक 9 अध्याय। अकेले में बैठकर हमने इसे पूरा करना है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है ऐसे काम करने में। ये भक्तिमय जीवन जीना होता है। हालेलुया। इस भक्तिमय जीवन से हम परमेश्वर के विश्वास के आत्मा को प्रॉफिटेबल बनते हैं। हम शरीर के लिए नहीं, हम विश्वास के आत्मा के लिए प्रॉफिटेबल बनते हैं। शरीर के द्वारा हम जो कुछ भी करते हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता है, वो मिट्टी है, मिट्टी में ही चला जाता है। तो हमारा प्राण ज्यादा शरीर की अवस्थाओं का महत्व रखते हुए ना चले। ओके, हमारे शरीर को, हमारा प्राण पवित्र आत्मा की अवस्थाओं में ज्यादा भगाए, ज्यादा चलाए। आमीन। ज्यादा मेहनती बनाए। आमीन। और ऐसा होने के लिए जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है, वो हमें निश्चित लाभ लेना है उस आत्मा का, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का। और 2 साल के अंत में देखेंगे हम परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा एक उत्कृष्ट बर्तन होकर परमेश्वर के इस्तेमाल में हम होंगे। यीशु नासरी के पवित्र महिमा के लिए हम होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमें वचनों में फिट एंड फिक्स कर रहे हो और हमारा जीवन परमेश्वर चाहता है उस रचना में लेकर आ रहे हो। हमें ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में आप तैयार कर रहे हो। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं नासरी यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।